Hello children, good morning to everyone. Today in this video you are going to study about the remaining chapter of history. Okay, before starting the video, before starting the chapter, I would like to ensure that each and every student has seen the last video, and this video is also important for you for making the notes and for understanding the whole chapter. And it is very important for everyone to watch the video, to view the video for getting the chapter more easily. Let us start the video. Okay, in the last video you have studied about the Chauhans of Ajmer, the Rajput kingdom, the Gojapatihara, the Solankis, the Mahmud Ghazmi, the Gauris, and the some part of the Chola. Now from here we are going to continue the Chola administration and the Chola dynasty. The Rashtrakuta dynasty. In such instance, the emergence of new dynasty, नई dynasty कैसे बनी? Before starting the Chola, I would like to tell you about the emergence of new dynasty, नई वंशों का उद्भव, उसका उदय होना, नए जो राज्य बने कैसे बने? By the 7th century, there were big landlords and the warrior chiefs in different regions of the subcontinent. सातवीं सदी में बड़े बड़े जो जमींदार थे, बिग लैंडलॉर्ड्स मतलब बड़े बड़े जमींदार, एंड द वॉरियर चीफ का मतलब व्हाट मीन्स द चीफ, योद्धा, सरदार, योद्धाओं प्रमुख जो थे, अलग अलग रीजन में थे. एग्जिस्टिंग किंग, जो भी उस समय जो राजा था, जो भी जिस डायनेस्टी में राजा था, he acknowledged them as a subordinates और सामंत. और राजा ने क्या किया? इन्हीं वॉरियर चीफ्स और इन्हीं बिग लैंडलॉर्ड्स को अपना सबऑर्डिनेट माना. सबऑर्डिनेट मीन्स विच इज वेरी नियर टू द किंग और विच इज अंडर द किंग, जो किंग के अधीन होगा, जो किंग के समीप होगा. एंड दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और द सामंत. Now, and they were expected, इनसे ये आशा करते थे राजा कि whenever they come to king, जब ये king के पास आएंगे, they come along to bring the gift for the king or the overlord का मतलब king ही हुआ. For the overlord or king, be present at the court में रहेंगे, कोर्ट में आएंगे, दरबार में आएंगे, and provide them the military support. Whenever the king required the military help, means सेना की सहायता उनको चाहिए होगी, तो ये लैंडलॉर्ड्स, ये जो सामंत हैं, ये राजा को उनकी हेल्प करेंगे. It was expected by them, ये इनसे आशा की जाती थी. As the सामंत gained power and the wealth, but धीमे धीमे ये जो सामंत थे और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, when they become powerful and wealthy, जब ये wealthy हो गए और जब ये शक्तिशाली हो गए, they declared themselves independent, इन्होंने अपने आप इंडिपेंडेंट मान लिया कि अब हम आपके साथ नहीं काम करेंगे, we will make our own kingdom and we will become a king of our kingdom. हम अपने किंग, हम खुद का राज्य बनाएंगे और उसके राजा हम स्वयं बनेंगे, हम आपके अंडर में काम अब नहीं करेंगे. And thus they declared themselves as a Mahasamant or Mahamandleshwara, means the main of that area, उस एरिया का जो मेन होगा उसी को बोला गया महासामंत और महामंडलेश्वरा. The Rashtrakutas. वन सच, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लें कि कैसे होता है ये. जैसा एग्जाम्पल Rashtrakuta dynasty. One such instance was
that Rashtrakuta in the Deccan initially they were subordinate to the Chaluks. जो राजपूता थे वो डेक्कन में चालुक्स के सबऑर्डिनेट थे, मीन्स वो चालुक्स के क्या थे, चालुक्स के वो अधीनस्थ, अधीन उनके, देवर अंडर द चालुक्स. कौन थे? राजपूता. मीन्स राजपूतास वर अंडर द चालुक्स इन डेक्कन में. चालुक ऑफ कर्नाटका के. इन द मिड 8th century, 8th century के मिड में, बीच में, दंती दुर्ग वॉज अ राजपूता चीफ. राजपूता वॉज अ डायनेस्टी, राजपूता की डायनेस्टी थी, उसका चीफ था दंती दुर्ग. इसने क्या किया? He overthrew his Chaluks overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. इसने क्या किया? अपने ओवरलॉर्ड, अपने राजा, चालुक के जो राजा थे, इनको हरा दिया. और हराने के बाद इसने एक रिचुअल करी. रिचुअल का मतलब एक संस्कार किया, एक संस्कार की. इसका नाम था हिरण्यगर्भा. लिटरेरी मीन्स, इसका मतलब था द गोल्डन वॉर्म. क्या था ये? देखिए, when this ritual was performed with the help of ब्राह्मण, उनका ये मानना था कि अगर ये जो रिचुअल हिरण्यगर्भा, अगर इस रिचुअल को अगर ब्राह्मण की हेल्प से, किसी ब्राह्मण की हेल्प से अगर करते हैं, इट वॉज थॉट टू लेड टू द रिबर्थ ऑफ सैक्रिफायर एज क्षत्रिय. ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या बन जाएगा? अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो क्या क्षत्रिय बन जाएगा. एज इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ. नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. Many of these new kings adopted, इन्हीं किंगडम्स के जो न्यू किंग जो बने, जो नए राजा बने, राज्य बने, इन न्यू किंग्स से नए नए बड़े बड़े टाइटल लिए, उपनाम लिए. क्या टाइटल लिया? जैसे महाराजा धिराज, ग्रेट किंग से बोला जाता था, ओवरलॉर्ड ऑफ सच किंग्स. त्रिभुवन बोला, दे ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ त्रिभुवन, चक्रवर्ती, and so on. Let us have a closer look of Chola administration. Cholas, in this video, in the chapter Chola Empire, to Chola Empire को पढ़ना है हमें. और Cholas is very important. यहाँ Cholas बहुत important है, इसलिए Chola को पढ़ेंगे. तो Cholas का बहुत ज़्यादा है पर हमें पढ़ना है. The successor of Vijayala conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. I have told you in the last video that Vijayala was a founder of Chola dynasty. He conquered the neighboring region. इसने neighboring अपने पड़ोसी जो एरियाज थे वहाँ के राजाओं को हराया और किंगडम को अपने अंदर मिला लिया. जब मिला लिया तो उसका साइज, चोला का साइज और पावर दोनों बढ़ गई. एरिया बढ़ गया और पावर बढ़ गई. चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड टू यूनिट्स. चोलास को यूनिट में बांटा. किसमें? यूनिट का मतलब इकाई होता है. एंड दीज यूनिट्स वर कॉल्ड प्रोविंसेस, कॉल्ड मंडलम. इनको मंडलम बोला गया. एंड मंडलम ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू वल्दनस एंड अदर. फिर पहले चोलास को बांटा यूनिट्स में, यूनिट को बांटा प्रोविंस में, प्रोविंस को बांटा मंडलम में, एंड मंडलम को बांटा वल्दनस एंड अदर्स में, which were actually village. The successor of Vijayala conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. The successor of Vijayala conquered neighboring region and next. Ur. The Ur was a general assembly of the village of the all class of people. Ur एक सभा थी जिसमें हर तरह के लोगों को, उसको every kind of people or every class of people can attend the assembly. Then sabha, it was a gathering of male. ये
मेल ही गैदरिंग थी, मतलब मेल कैन, केवल ओनली मेल कैन अटेंड और मेल अडल्ट कैन बी द मेंबर ऑफ दिस सभा. ओके. नागरम, इट वॉज बेसिकली फॉर द मर्चेंट who perform administrative activities. नागरम, it was basically for the merchant. ये merchant का, it was assembly for the merchant. ये merchant की assembly थी. And basically it was performed the administrative activities. यहाँ प्रशासनिक कार्य, राजा के काम और प्रशासन के कार्य, खरीदना बेचना, इन सबको देखना इसमें नागरम में था ना. चोला एम्पायर, टेम्पल एंड आर्किटेक्चर. चोला, in this image you can see the Chola temple. It's a Buddhist temple. The temple under the Chola were the chief source of recreation and other source economic and political activities. In the Chola dynasty में मंदिर जो थे, तो टेम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट, दे हैव वेरी इम्पोर्टेंस बहुत था उसका, क्योंकि इसी मंदिर में सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी. द टेम्पल परफॉर्म वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. टेम्पल में सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुआ करती थी. ओके. नाउ द विलेज असेंबलीज कंडक्टेड द मीटिंग इन हियर. और जो विलेज की जितने भी असेंबलीज थी वो भी इसी टेम्पल्स में हुआ करती थी. नाउ नेक्स्ट, आई होप everyone is getting the chapter. The temple architecture. The temple architecture followed the Dravidian style. The temple architecture was followed the Dravidian, means जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था वो द्रविडियन स्टाइल था. एक्चुअली द्रविडियन ये जो स्टाइल, एक स्टाइल है जिससे कि मंदिर बनती है. देयर आर टू टाइप ऑफ स्टाइल, द्रविडियन एंड नागर. देन सेकेंड, the chief feature of Chola temple is विमान एंड शिखर. द चीफ फीचर, इसका जो चीफ फीचर है वो क्या है? विमान एंड शिखर. शिखर जैसे बोलते हैं ऊंचाई पर, शिखर. तो जितनी भी चोला टेम्पल हैं उनके ऊपर बहुत ऊंचाई पे बनते हैं. अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर पीछे, ये दिस इज कॉल्ड विमान और शिखर. ये एकदम टॉप पर, ये पूरा दिस इज कॉल्ड विमान और शिखर. The most famous Nataraj or the dancing Shiva temple at the great temple of Chidambaram is very important. Now, Gopuram. Gopuram is a style of a Dravidian. Dravidian का स्टाइल एक है जैसे गोपुरम, ये जो ऊंचाई पे दिखाई पड़ रहा है इसी को गोपुरम बोलते हैं. As a गोपुरम और अब गोपुरा मॉन्यूमेंट एंट्रेंस टावर, इसी को एंट्रेंस टावर बोलते हैं, जहां से प्रवेश करते हैं लोग. यूजली ऑर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ अ हिंदू टेम्पल. इट इज अ द्रविडियन स्टाइल और द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑफ तमिलनाडु. इफ यू गो, अगर आप तमिलनाडु जाते हैं, आंध्रा जाते हैं, केरला जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, यू विल सी दीज टाइप्स ऑफ टेम्पल. एंड दीज टाइप ऑफ टेम्पल देयर विल बी गोपुरम टेम्पल, देयर विल बी अ एंट्रेंस टावर. इट विल बी वेरी हाइटेड, बहुत ऊंचाई पे होगा. गोपुरम स्टाइल इज द द्रविडियन स्टाइल विच इज यूजली यूज्ड इन द साउदर्न द्रविडियन स्टाइल. गोपुरम स्टाइल इज द द्रविडियन स्टाइल, ये द्रविडियन स्टाइल है, यूजली यूज्ड इन द साउदर्न. ये मोस्टली साउदर्न मीन दक्षिणी भारत में इस तरह की स्टाइल को यूज करते हैं. ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो. I'm going to stop the chapter. This video was the remaining part of the chapter. I hope each and every child has understood
this chapter, and please view this video, understand the video, and whatever the important topic you have listened, you have seen in this video, note down in your copy, make a note. This will be very helpful for understanding the whole chapter. Goodbye, take care.